Hello friends, welcome to Ansarkari, and today with respect to the 11th February newspaper, we will try to extract as much as possible from the examination perspective and from general knowledge perspective. The first article states about Unani Day 2025 and International Conference. Unani medicine, which is linked with one of the foremost methods and one of the foremost fields which is very much promoted in India in a holistic way. So the key word here is integrative health solutions. Because unlike allopathy, Unani medicine is non-intrusive. Unani medicine is more of a supportive system, a system which provides solutions in a holistic way. But when we speak about Central Council for Research in Unani Medicine, which is under Ayush, Ministry of Ayush, then we can say in last 1 decade or more, there had been a great development. One of the trusted names is of Hamdard. In this context, one must know the history of Hakim Azmal Khan. One must know how in ancient India, Unani medicine came to India and why it is called Unani. What it has to do with Yunan. And on the top of it, how along with Siddha, along with Ayurveda, along with other like naturopathy and even allopathy, how it can become part of the mainstream. Couple of personalities, if we know, then also it will help us. When we speak about industrial development or even talk about the contribution of industrial sector to GDP at the national level for which we have a target, then there are certain states which are at the foremost: Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu. But in central India, it is Madhya Pradesh, Pithampur region around Indore, and even the role of dedicated freight corridor. So what makes Madhya Pradesh click? So we have to think from the perspective of resources. So are there key mineral resources? What is there with respect to infrastructure? In that context, we must always remember it is the second largest state by area, fifth largest state by population. And then, as I just said, it is also on the DMIC corridor, Delhi Mumbai Industrial Corridor. Very, very important north-south corridor trunk line linkage. Even east-west corridor. That's why I said Madhya. Even name is Madhya. How easy it is to get industrial land. How easy it is to create not only brownfield but also greenfield sites. And at the top of it, what kind of ease of business practices are there? What are the practices and policies with respect to women or contract workers? Is it doing something special than other states? What is the contribution to EPFO? All these factors, if we keep in mind, including commercial airports and also inland container depot and also agro processing industries, then we can really understand and think whether it is soybean, whether it is iron, whether it is semiconductors, whether it is in terms of animal husbandry, or whether it is in terms of heritage, how Madhya Pradesh is so smart and a different state. And knowledge economy में भी क्या करता है, that also we have to see. So that is why from the mains perspective, the question says that ease of doing business. How easily one is able to get services and one is able to get access in the state. So Madhya Pradesh Jan Vishwas Amendment Bill. First state in the country. Remember this. It decriminalizes more than 64 provisions of 8 state acts. Ease of living, ease of doing business. Legal reforms are very important. And then geo portals are there for infrastructure planning. Very, very innovative aspect is of key cyber tehsil and labor case management system. So these are all pro-business, pro-industrial steps.
and on the top of it, you have a dedicated single window. So this helps us to understand that whether India will be able to reach its Viksit Bharat status, whether certain kind of central government act or any kind of institutional methods and mechanisms are they supporting. This is what we have to see. Coming to international relations, US is announcing 25% duty on steel and aluminum imports. Imports, that means India must export and then only it is a problem. But for India, is it a threat? Because India is definitely exporting, but then the tariff affected countries are likely to look for alternative markets. US will not have much impact on India. Why? Because we are not, in fact, exporting much to the US. So is it an advantage or is it a problem? Already we have been suffering from cluttering. Already we have been suffering from dumping also. We have a tough competitor in form of China. So it is to be seen from that context. We can always make a list of export and import with respect to the US. And we can always try to understand on our own that what kind of steps India must take in the next half a decade. As already we can see that it is the question about dumping, because anti-dumping measures are not just sufficient. You need lot of credible and powerful mechanism. So are our institutional mechanisms are powerful enough? Are we going to get our all needs, infrastructure needs, fulfilled in a better way? That is what we have to see. And then regularly in the news is that how Indian rupee is behaving with respect to dollar. So it is reaching 88 rupees 88. $1 is equal to 88 rupees. So market fall is there because of the steps taken up by the US president. But then RBI is intervening only in the way so that it cannot artificially balance it, because our economic fundamentals are very strong. The trend of taking out money from the emerging markets will continue for the coming years, and we have to brace for that challenge. That is why even in case of stock and mutual fund, there will be much more correction. That also means at the end of the day, if you have a powerful, knowledgeable, and also employed resources, then these kinds of impacts are less. It is also indirectly reflecting that how, if from India, if people are illegally even migrating, that is also not a surprise. So RBI is stepping in. RBI is stepping in and it is trying to say that how we can help the market rather than controlling the market. So repo rate, reverse repo rate, and even the goal of RBI to make sure that market forces are continuing and moving in a natural way is very, very important. That is why the real effective exchange rate, another very, very important concept, real effective exchange rate. So one can say that real effective exchange rate is also at an all-time high of 108, and it is suggesting over evaluation of Indian currency. So over evaluation जब होगा, course correction होना चाहिए. So that is why in our economic series also we have discussed these concepts. Price pressure आएगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, स्टील है, एल्यूमिनियम है, इवन रेस्ट ऑफ टेक्सटाइल्स है, देन देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस. But again, it is not a one-day game. We have to see what kind of foreign trade agreements we are having with the rest of the countries in Asia and also in Africa, and are we looking for new avenues? So, when we say in a related development, if I take up this another topic, which says oil seeds purchase को अगर हम प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर लेकर आए, oil seeds purchased through institutional mechanism of NAFED and NCCF. For instance, soybean and groundnut in 7 states. Will it be going to help consumers and also Indian farmers and also the whole ecosystem? Oil seed की जो परचेज है वो खरीफ सीजन में और भी बढ़ती चली जाएगी. And
the extended procurement is going to help. The agencies are there to help the marginal and other farmers. The question arises, is it a long-term phenomenon? Will India be continuing this process of price support scheme? Will be there other kind of consequences when already India is a net and a very huge oil seeds importer? Another reported thing is that India is stopping or ending duty free import of yellow peas, यानी कि हमारे पास येलो पीस की डंपिंग ना हो, लोकल मार्केट को हर्ट ना हो, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं. इसमें रोल आता है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन का, आईपीजीए. सो आईपीजीए is helping as a barometer. Again, coming back to the same related aspect of the continuing downside slide of rupee, क्या एक्सपोर्टर्स को बहुत गेन होगा? इंजीनियरिंग सेक्टर कहता है यस, बिकॉज स्लाइड से उनको बेनिफिट है. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो है वो 27% है टोटल एक्सपोर्ट के. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इट इज नॉट मच व्हेन वी सी द ग्लोबल शेयर. सो एक्सपोर्ट सेक्टर की वॉलेटिलिटी चलती रहेगी. लेकिन क्या ये फायदा पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम, ज्वेलरी, क्योंकि हम पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें पोटेंशियल गेन लिमिटेड है. सो डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर, इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथ तो मिलेगी, लेकिन कितना बेनिफिट एक्चुअल में होगा, ये हमारे लिए एक समझने वाली बात है. क्योंकि इंडियन करेंसी इज ओनली नॉट डिप्रिशिएटिंग, देयर आर करेंसीज फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, Vietnam. But again, Chinese case is of a different case. It is artificially driven. जब जब यूएस फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी रेट्स को हाइक करेगा, टैरिफ्स की बात होगी, तब तब ऐसा होगा. So this is what we have to see from the conceptual perspective. Imported inflation एक कॉन्सेप्ट है, एंड राइजिंग इंपोर्ट बिल ये भी एक कंसर्न है. Imported inflation, not because of the local conditions of supply and demand. So very important you have to understand that imports of precious stones, petroleum products and electronic items, वो हमारे 40% import basket का पार्ट है. वो महंगा होगा, बिल्कुल होगा, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स भी महंगा होगा. तो क्या इससे नेट रिजल्ट हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा. बट द क्वेश्चन इज हाउ मच cushion our domestic structure can handle. That is very important, and from this perspective you must create a small note. इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी अगर हम कहें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज आल्सो डिस्कस्ड इन आवर इकोनॉमिक सीरीज. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब लिक्विडिटी टाइट होने की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि देयर आर इवॉल्विंग कंडीशंस. लिक्विडिटी मेजर्स को आरबीआई देखता है और उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है कि लिक्विडिटी अगर बढ़ानी है तो रिलीज होगा, लिक्विडिटी अगर स्क्वीज करनी है देन देयर विल बी इंटरवेंशन इन अ डिफरेंट वे. कमिंग फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव एंड सोसाइटल मैनर, अगर चाइना में मैरिजेस लो हो रही हैं और पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रहा है, तो क्या इंडिया में भी 2 डिकेड्स के बाद ऐसा होने वाला है? क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी या लेट मैरिज पॉलिसी या डिवोर्सेस या जो भी आप मानिए, क्या एक इंस्टीट्यूशन पे खतरा है? फॉर अस द ओनली पॉइंट टू लर्न इज दैट हाउ वी कैन पॉजिटिवली मूव टुवर्ड्स आवर फैमिली एंड हेल्थ पॉलिसी. इंडिया का लार्जेस्ट पॉलिसी है, बर्थ रेट इंडिया में भी गिर रहे हैं. वी हैव टू सी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ विच स्टेट इज अबव एंड विच स्टेट इज बिलो फ्रॉम ए रिस्पेक्टिव लेवल, कि एक हम अंदाजा लगा सकें कि केरला का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार से डिफरेंट है, तो आगे जाके कंडीशंस कैसी होंगी. क्वेश्चन सिर्फ मैरिजेस फॉल होने का नहीं है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, और चाइना का अभी अगर कुछ इंपैक्ट होगा भी तो वो हमें 20 साल बाद ही दिखाई देगा.
क्योंकि 1980 से 2015 तक चाइना का जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव आया. One very important aspect is again how European Union is going to behave to the US tariffs. European Union will also going to take action because these are not the times of 1940s, 50s or 60s जहां पर चीजें एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई थी. We have also to think what exactly US can do in terms of tariffs. All steel and aluminum imports into the US are going to put on tariff. Then you please also think यूरोपियन यूनियन क्या कर सकता है इसके रिटेलिएशन मेजर के कॉन्टेक्स्ट में. अगर हम इंडिया की बात करें, क्या इंडिया में 1 रुपया छपता है? 50 पैसे 25 पैसे क्या लीगल टेंडर हैं? जब हम पेनी की बात कर रहे हैं यूएस की, तो वो न्यूज क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये पेनी इज एक्चुअली कॉस्टिंग मोर देन दे आर वर्थ. फॉर अस द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सिर्फ इकोनॉमिक वर्थ ही देखी जाएगी? क्या सिर्फ किसी भी कॉस्ट पे पैसा बचाना और उसके लिए आप एक ऑर्गेनिक या फिर आप लॉन्ग टर्म सिस्टम को भी कोलैप्स करें, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को भी आप कंप्लीटली ओवरऑल करें, हाउ फार इट इज मीनिंगफुल एंड हाउ फार इट विल बी सक्सेसफुल? You can write in the comment box. Our defense minister says there is no Indian security or Indian peace in isolation. That is what Indian national security, Indian security doctrine also practices. Security, stability and peace are shared constructs. उसके लिए हम कभी नहीं दुआ करते कि पाकिस्तान भी खत्म. But then we can not also allow our rights to be trampled down by them. India believes in its existence in a peaceful way, but India is going to give a very, very harsh reply anyone who is going to challenge it. Very important from the mains perspective is the MSME concept, which is there in the General Studies paper 2 indirectly and 3 directly. MSME, Udyam portal, very important role it is playing. And all units are not there on the Udyam portal. Question arises why? हर एक को पहले हैंड टू माउथ का रोल प्ले करना है. क्या उनको इजीली लोन मिल रहा है? क्या वो लोन पे कर पा रहे हैं? सर्वे जो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स का है वो क्या कहता है कि 32% एमएसएमईज जो है वो पेरिश हो गई. 2020 के बाद से ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो गया है. जुगाड़ इकोनॉमी को फॉर्मल रूप मिलना चाहिए. नए जुगाड़ इनोवेशंस के लिए भी रास्ता मिलना चाहिए. स्टिमुलस पैकेज पूरा हेल्प नहीं कर पाया. क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी वो नहीं कर पाई जो सोचा गया था. दैट इज वाई एमएसएमई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है उसके अंदर ओवरऑल होना चाहिए. दैट इज वाई बजट 2025 will be going to push that, because without them you cannot think of India getting into a Viksit Bharat mode. Without them you cannot supposed to be make in India, made in India or even Reliant India. So क्या इसके लिए स्टार्टअप्स एक रोल है? एमएसएमई क्या स्टार्टअप्स मोड में बहुत अच्छा कर पाएगी? क्या शार्क टैंक जो दिखाया जा रहा है वही असली स्टार्टअप का रूप है, या फिर हमें इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, या कॉलेज के जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स आ रहे हैं उनका और पैशनेट करके उन्हें रियली में उन्हें इंडस्ट्रियल सेटअप्स के अंदर जो कंपनीज ने भी इंटर्नशिप्स की बात की उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए. एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे किया जाए इस पर हमें सोचना होगा. सो क्वेश्चन अराइजेस, जो गैप है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, चाहे फिर वो मनी का हो, चाहे मैन पावर का हो, मार्केटिंग का हो, मटेरियल का हो, इसको कैसे पूरा किया जाए, दैट इज द होल पॉइंट. So in this context, energy is very important, because whether it is LPG, PNG, ethanol blending, solar power and non-fossil fuel जो energy capacity है, and even solar power, all these are the key areas on which we have to think how Indian energy trident can be there. जब हम बात करते हैं कि business requires a conducive climate, सो आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज की बात है और एआई की बात है, जियोपॉलिटिक्स की बात है, तो क्या स्ट्रेटजीज हमें चेंज करनी होंगी? सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट वी हैव टू मेक श्योर देयर आर नो अनवांटेड एंड देयर आर नो अनडन चेंजेस, बिकॉज जो रिस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है वो कभी भी बेसिक इन्वायरमेंट से डीकंस्ट्रक्ट होकर नहीं हो सकता है. मध्य प्रदेश की हमने बात की, उस कॉन्टेक्स्ट में यदि मध्य प्रदेश को रोल मॉडल लेकर आप सोचें कि उसके बिजनेस एनवायरमेंट में क्या दलित्स का रोल है, क्या लोकल कम्युनिटी का रोल है, क्या आउटसाइडर्स को, इंदौर अगर स्मार्ट सिटी बनता है, पुणे की तरह थ्राइव करा जा रहा है,
क्या वो अगला बैंगलोर बन सकता है इंडस्ट्रीज का? क्या आसपास के गांव में भी वो विकसित भारत की लहर जा रही है? क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हम बात करते हैं उनके एलिमेंट्स अगर वहां ऑलरेडी विजिबल हैं तो वो कैसे प्रमोट हो रहे हैं? क्या बुंदेलखंड या फिर जो चंबल का बीहड़ है उसका भी एक पॉजिटिव रोल होगा? सो प्राइस वाटर कूपर की रिपोर्ट हो, चाहे फिर वो ऑटोमेशन करने की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेने की बात हो, जो एआई मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत चेंज नहीं कर सकते हैं, इट विल टेक अ डिकेड। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? ऑलरेडी आवर प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू मेक श्योर इंडिया इज नॉट ओनली इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ शॉक्स बट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। फॉर दैट वी रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, WTO है, उसका जो रोल है उसमें भी इंडिया ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से पुटअप किया, बट इट इज नॉन फंक्शनल, इट इज Eurocentric, it is US centric. We have to move, we have to fight, and we have to understand that हमें अपनी जगह लेने के लिए लड़ना होगा. Similarly, to have pride in our culture, to believe that, Indian culture is having a great sustenance, Indian culture has a great belief and great depth, उसको भी हमें देखना होगा. Industrial revolution and at the top of it, India's free food program जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी पॉजिटिवली देख कर ही हम आगे चल सकते हैं. क्या किसी राज्य के इलेक्शन आने पर किसी चीज का अचानक से रोक देना या उसका बढ़ाना, बिकॉज बिहार बीइंग ए मेजर लेंटिल ग्रोइंग सीजन, अगर फार्मर प्राइस को स्टेबिलिटी देनी है उसके लिए मसूर के इंपोर्ट को रोक दिया ही जाए, तो क्या ये सही कदम है? आप खुद सोचिए, और आप उसमें डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन है? इट मे बी बेनिफिटिंग बिहार, इन टर्न द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो सेंटर में है, बट देन हाउ फार दीज मेजर्स कैन हेल्प अस? हम ऐसा क्यों ना करें कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं वो कम जरूरत पड़े, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से राइज करते हुए हम देश के विकास में सभी चीजों का योगदान दें. सुप्रीम कोर्ट is never willing to go for the capital punishment, only in the rarest of rare cases. So that is why it is not only about the annual years कि इस साल भी कोई भी सिंगल डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट की बात जब हम करते हैं, प्रोजेक्ट 39A क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम जो NLU दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, वो जब इस बारे में चर्चा करता है कि किस प्रकार से कैसे सुप्रीम कोर्ट इच्छुक नहीं है जबरदस्ती किसी की लाइफ लेने के लिए. कोर्ट रिलाई करेगा रिपोर्ट्स के ऊपर, एक्यूज की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, जेल कंडक्ट, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन, तब डिसाइड होगा. लेकिन आखिर लोग कितने हैं जो फांसी की कगार पर है? 564, 139 death sentences were awarded by trial courts. 87%, 87, that is 62% were imposed in the murder cases, and 25% in cases, you can say, with respect to sexual harassment, other kind of offenses. कहना होगा समाज में बदलाव की जरूरत है, कहना होगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट की दुहाई है, बट द पॉइंट अराइजेस दैट हाई नंबर ऑफ डेथ रो कन्विक्ट्स. क्या ये ट्रेंड है कि ट्रायल कोर्ट जानबूझकर डेथ सेंटेंस दे देते हैं और लो रेट डेथ, जो डेथ पेनल्टी का हाई कोर्ट में जो है वो रास्ता पार नहीं हो पाता है? इस दिशा में सोचने की जरूरत है. दैट इज वाई most death row prisoners in 2024, that is 564, but then again I would say it is all about reflection of societal and also people's mindset and also their behavior. Social behavior is reflected in the individual behavior, and individual behavior is reflected in the social behavior, and that is why judiciary is the benchmark in that context. Under section 366 of CRPC 1973 and section 407 of BNS 2023, death sentence proceedings must be forwarded to High Court for confirmation before they can be executed. So चल रहा है, लेकिन रिफॉर्म एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. किसी की भी जान बहुत कीमती है, and that is what constitutional parameter also says. In this context, क्या एक convicted person legislature को रिटर्न कर सकता है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एसए का टॉपिक भी है, एथिक्स में भी है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी है. इस बारे में सोचा जाना बहुत जरूरी है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हम रोक पाएंगे जब हम किसी कन्विक्टेड पर्सन को लेजिस्लेचर में नहीं आने देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेटिंग अप ऑफ 12 स्पेशल कोर्ट्स इन द 10 स्टेट्स
जो एमपी एमएलए इसके खिलाफ होंगे। सो द वे गोज, जल्दी निपटारा होना चाहिए, समाज के सामने आईना क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद उन चीजों को जनरलाइज ना करते हुए ट्रायल कोर्ट और बाकी बाद में भी जब सारी सजा हो जाती है जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें शॉर्टकट यदि है, देन वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अदर रिफॉर्म्स जो स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई हो, और जो पॉलिटिकल आउटलुक है उसमें भी परिवर्तन आए। देन ओनली वी कैन से सो। बाय जस्ट फर्मली सेइंग कि कन्विक्टेड पर्सन आ ही नहीं सकता, ऐसा गलत होगा, रिफॉर्म की गुंजाइश है। In context of health, there are so many things which are being said. So gastroparesis एक पार्शली सेल्फ रिजॉल्विंग मेडिकेशन, अगर आप उसको मानते हैं, जो बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव चीजें करेगी, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में जरूरी नहीं है। जो ड्रग्स हैं वो आपके डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, फूड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से वो रोकती हैं, लेकिन ये क्या मेडिसिन लॉन्ग टर्म में ली जानी चाहिए? क्या इसका मिसयूज हो रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ गैस्ट्रोपैरेसिस ही नहीं, ओवर द काउंटर आप 5 ऐसी मेडिसिन को भी सोचिए जो आपको लगता है कि आज के डेट में हेल्थ और लाइफस्टाइल को खतरा देते हैं। आर्टिकल 200 expects governor to tell state reason for withholding assent to the bills. Please remember this from the context of the prelims examination. That is a very important note. मिस्टर खुल्लूर बालन इज एन एग्जाम्पल जो ये हमें बताते हैं समाज की सेवा करने के रास्ते बहुत सारे हैं। इसके लिए किसी पैसे की, किसी भी प्रकार के धर्म की, किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है जो सेल्फ सेंटर्ड हो। ही हैड बीन नोन एज अ फॉरेस्ट मैन और एज द पर्सन हु हैज बीन फीडिंग बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, और वो जाते थे, मंडी में जाते थे, बाजार में जाते थे, पैरिश्ड और गंदे फ्रूट, सब्जियों, वेजिटेबल्स को उठाते थे, बर्ड्स को फीड करते थे, और पूरे पलाकड़ के जंगलों में उन्होंने 100 एकड़ से भी ज्यादा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को भी क्रिएट करके उन्होंने नाम कमाया और हमारे लिए रोल मॉडल बने। एंड इवन ही वाज बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट वी कैन से टोडी टैपर। इतना कोई हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई हार्वर्ड से पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है। One good thing about music is that when it hits you, you don't feel any pain. Music धर्म, जेंडर और छोटी सोच की बाउंड्री से परे है, इसीलिए आप उसमें पॉजिटिव थेरेपी देख सकते हैं, चाहे फिर वो स्ट्रेस हो और चाहे फिर वो कोई सोच हो। Yes, European Free Trade Association is very important. We must know all the members of European Free Trade Association. We also must know कि कैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो 100 बिलियन कमिटमेंट इंडिया के साथ कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में इंडिया को हेल्प कर पाएगा? ये एक डेडिकेटेड गोल है, ये एक ऐसा गोल है जो इंडिया के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है वो अगर स्ट्रेटेजिक तौर पे राइज कर रही है, तो सेम बात आप इंडिया यूरोपियन यूनियन के लिए भी कहेंगे, ईएफटी के लिए भी कहेंगे, क्योंकि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं हब एंड स्पोक मॉडल में, जिसमें सेंटर में एक होगा और उसके स्पोक्स होंगे, वो हमारे लिए जो ईएफटीए मेंबर्स हैं उनके सपोर्ट से हो सकता है। ऐसा आप एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं। एज आई जस्ट सेड, क्या ये डील है कि क्या ये रिलेशनशिप है? ये एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक डील है, लॉन्ग टर्म फोकस है, ये ट्रांजेक्शनल एग्रीमेंट है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम है, ट्रांजेक्शनल अरेंजमेंट है जिससे मार्केट एक्सेस बढ़ेगी, या फिर एक रिलेशनशिप है जिसमें म्यूचुअल वैल्यूज, जिसमें आइडियाज और ग्रोथ कनेक्टेड होगी, जियो पॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद भी हम राइज कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल है। इंडिया ग्रोथ की तरफ है, इंडिया इंथुजियास्टिक है, इंडिया पॉजिटिव है, इंडिया को टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, वुमेन एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर, सभी जगह हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो इन साइबर। BJP is set to take power. That is one of the important developments with respect to political news. We have already seen that. Constitutional scheme बहुत important है, prelims में question आता है कि why LG is there, who gives oath, Article 239, please go through it and read it carefully. And on the top of it, Article 239AA,
जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, which specifically deals with the governance of Delhi. This is also very important for you to understand because it helps us to go through the whole history कि कैसे 1990s के बाद दिल्ली और सेंटर का रिलेशन रहा है। डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन इंडिया बिलीव करता है। डीईआई में इंडिया ने अपनी तरफ से अपने कल्चरल वैल्यूज को रोककर, मतलब समझकर और साथ में उनको इंक्लूड करके किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश में कर रहे हैं वो नियो कंजर्वेटिव वैल्यूज को शो करता है, वो एक हाई हैंडेडनेस को शो करता है। लॉन्ग टर्म में ये कोई सजेशियस या कोई भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल या बहुत ही पॉलिटिकली बहुत रिफॉर्मेटिव आइडिया नहीं है। इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू बैकफायर बिकॉज हिस्टोरिकली मार्जिनली बैकग्राउंड्स को जब तक आप साथ नहीं लेंगे देन देयर इज नो ग्रोथ इन रियल टर्म्स। क्वेश्चन अराइजेस कि ला नीना के बावजूद भी जनवरी 2025 वार्मस्ट था और वो टेम्परेचर कूल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ला नीना साइकिल जो है वो क्या वेरिएशंस के साथ आई, उनकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और स्पेसिफिक रीजन्स ने क्या रोल प्ले किया। ला नीना की साइकिल यदि वीक है तो गर्मी हल्की से ज्यादा होगी, एल नीनो तो गर्मी बढ़ाता ही। दैट इज वाई जो नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उनका मानना है कि एनसो के जो इवेंट्स हैं वो जो पीक पर जाते हैं, तो वो पीक पर यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में जा रहे हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता जिससे ला नीना स्ट्रेंथन हो पाए। वीकर ला नीना टिपिकली वीकर इन्फ्लुएंस करेगा टेम्परेचर्स के ऊपर और पार्टिसिपेशन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स पे भी इसका इंपैक्ट होगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड रिमेंबर कि एनसो के 3 फेज होते हैं, वार्म यानी एल नीनो, कूल यानी ला नीना और एक न्यूट्रल, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है। न्यूट्रल फेज में और इसके जो वार्म फेज में क्या होता है, यू कैन गो टू द ज्योग्राफी सीरीज एंड कैन हैव अ ग्रेटर लुक। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज ग्रैपलिंग विद द फैकल्टी शॉर्टेज, वेरी ट्रू। इसके लिए हमने यूजीसी, इसके लिए हमने हायर एजुकेशन, इसके लिए हमने एमएचए, इसके लिए हमने जो बजट है उसकी भी चर्चा की। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है, क्या होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, साथ साथ में जीडीपी का रोल बढ़ना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग बढ़नी चाहिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जिसकी हमने चर्चा पहले भी की है, जिससे आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों को और इवन रिसर्चर्स को, ग्लोबल जर्नल्स को बहुत ही कम कॉस्ट में और फ्री में भी मिल सकते हैं। ग्रेटर ऑटोनॉमी टू एसपीयूज फॉर गवर्नेंस, फैकल्टी हायरिंग एंड करिकुलम डिजाइन एंड स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। आप इन सब एलिमेंट्स को एक साथ जब सोचते हैं तो आपके दिमाग में पॉइंट आएगा कि इनको इंप्लीमेंट आखिर किया कैसे जाए। You just think about it and you can write in the comment box. You will be given the feedback also. जब हम बात करते हैं prelims के एग्जाम की, then there are questions on wildlife sanctuaries and Indravati Park. So Indravati National Park in Chhattisgarh is very important. From that context, usually please go to the map and try to see its location and try to see that what more can be done there. Every difficulty brings an opportunity to grow. ऐसा सिर्फ मोदी जी और हमारे देश के बाकी नहीं, हम भी ऐसा मानते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट फॉर सक्सेस वी रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ fortitude, different kind of attitude and also confidence, which is reflected through Prime Minister Modi, his initiatives and also schemes. जैसे मैंने पहले चर्चा की, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो शेप कर रहा है और इंडिया उसके सेंटर में है, क्योंकि एमर्जिंग एक न्यू एनर्जी ऑर्डर है जिसमें इंडिया पिवटल रोल प्ले कर रहा है। इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है किसी भी ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव में। क्लाइमेट चेंज में भी हमने अपने टारगेट्स फिक्स किए हैं। इंडिया ना सिर्फ अपने एनर्जी लैंडस्केप को चेंज कर रहा है, वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज अंडरस्टैंड एनर्जी जस्टिस। अगर हम कहते हैं उज्ज्वला के थ्रू हमने सिलेंडर दिए, अगर हम कहते हैं बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे, अगर हम कहते हैं कि हम हर घर जो है सूर्य बिजली योजना की बात करेंगे, तो हम वो भी एक पॉइंट है। और हम पीएनजी की बात भी करते हैं, 2G 3G बायोफ्यूल की बात करते हैं, ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं, हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं, ये सभी हमारे उसी के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए। In that context, it will not be very very successful if industry or policy makers का collaboration नहीं। Industry is one wheel, policy is another wheel, and people are the third wheel. Please take a kind of a screenshot जहां पर आप एनर्जी मिक्स की जो हम ये जो आपके स्क्रीन पर है पावर जनरेशन मिक्स को ध्यान से समझिए कि किसका कितना शेयर है और टोटल टारगेट्स कितने हैं, क्योंकि ये टारगेट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के और जो
पावर जनरेशन मिक्स के एस्पेक्ट हैं, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा गोल है पेरिस 2015 से और नेट जीरो तक के जाने का, वो सफर हम पार करके रहेंगे। यूएस ने 2050 बोला, चाइना ने 2060 बोला और इंडिया ने 2070 बोला। ये हमें याद रखना होगा और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपके डाउट हो, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच एंड डू जॉइन आवर कोर्सेज to get success. There is no other way than smart work.